तेरा मैं तेरा मैं चारों तेरा मेरा धर्म कटलता जन्म कपाती राम कृष्ण जी के जीवना मोर नाम सारो मैं जन तेरा तेरी अरोगत जन करो सुनवाई चरण साधु शरीर कल जाई कैर मुरास परम तेरी संभा मेरू मिले जन करना लंबा मोर नाम सारो जी मैं जन तेरा Thank you.
विच वाला पीर प्यारा चलिया विच वाला पीर प्यारा विच वाला पीर प्यारा तेरा विच वाला पीर परम सत्कारयोग साथियों, सारे सत्संगी ख्याल में रोक के अरजस दे नाल जोड़ो ताकि जिथे समझ पैनी है भी गुरु जी ने किस तरह धर्म युद्ध लड़िया और उसका राज की सी, मतलब की सी, उन्होंने अपना विरसा समझने दे विच सिखाई हो जाती है जे ख्याल रोका हो। जे ख्याल ना रोका हो बगाना जा लगता होंदा, इतिहास बगाना जा लगता होंदा है। जब ख्याल जुड़ा होगा ਉਹਦਾ इतिहास का ਜਿਹੜਾ असर होएगा, जो पानी जाता है पानी तो चले जाता है, पानी की जी सेम है थले तो चली जाती है। पानी जाता तुरया धरती के उपर, पर पानी की सेम थले रचती जाती है। इतिहास में अपना समझ के सुनांगे कि साडे मालकां दा, साडे वड्डियां दा, साडे गुरुआं दा, साडे खसमां दा इतिहास है, साडा इतिहास है। फिर इसलिए नाल दी नाल समझ पवेगी, नाल दी नाल वो इतिहास का सुनने दे नाल प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगी। जिन्हें अपनी कोई चीज नूं
ਲੱਭਦਾ 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 ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਕੱਲ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਿਆਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਮਿਲਿਆ ਵੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਧਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੜੀ ਤੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਵਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਮਤਾਬੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਰੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ ਮਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਮਾਸੀਵਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਸੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਮਤਾਬਾ ਕਾ ਡੋਲ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਸਪੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਸਰਵੱਗ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸਜ ਗਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰਾ ਪਾਸਾ ਪਲੰਘ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਲਾ ਪਾਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ। ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਦ ਘੇਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਵੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਣਾ ਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਸੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੈਲਟ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ,
रोजे रखे हुए ने, कुछ खाते नहीं। तो उन्होंने कहा था भी तुम नाल दे तो खाओ, जो पीर दे मरीद हो वो तो खाओ। उन्होंने मांस वढ़ लिया हलाल करके। भाई दया सिंह ने गुरु जी ने इशारा किया भी सतनाम करके कृपान भेंट कर ला, जेड़ा तो सकना वो तिहावल का प्रसाद हो जाएगा। इस तो सकया। गुरु जी कहने लगे भाई दया सिंह कुछ पल्ले भी बन ली। उन्होंने पल्ले बन लिया। अगे जितों भी नहर निकली है, नहर तो हम अंग्रेजा वेले निकली है, जी सरहंद नहर जाती है दराहे नूं, वड्डी दराहे तो अगे जाके फिर कई हो जांदियां ने, झाड़ साहब चमकौर साहब के कोल दी जांदियां ने। लुधियाने तो जाइए चंडीगढ़ नूं पुल आउंदा नीलों दा, वो पुल तो निशान साहब दीना ने गुरुद्वारा दीना है, 2-3 फरलांग है। वो देवसर गुरुद्वारा उत्थे गुरु जी ने कह लिया भाई दयास लिया की है तेरे को सक लिए। खोलिया तो उही मास। गुरु जी ने भाई दयास मारे तो मास है। गुरु जी कहेंगे सारा ही मास सीगा, वो तो कृपा दृष्टि नाल तेनू तिहावल करके सिखाया सी ताकि उन्होंने विश्वास आ जाए भी सक लिया। उत्थे देगां चढ़दियां ने। उतो सतगुरु महाराज जी अगे उचदे पीर बन के चले ने, गौर नाल अपने पंग तो सजे हुए ने। दुनिया दूरों दूरों आके पीर दे दर्शन करती है। उतो गुरु जी फिर चाले पा देंगे ने अगे रेणु साहब वाल नूं, 1.5 मील तो उतो अगे रेणु साहब गुरुद्वारा है। उस वाला पीर प्यारा चलिया है, उस वाला पीर प्यारा, उस वाला पीर प्यारा, सतगुरु उस वाला पीर प्यारा।
इतने सतगुरु महाराज जी अगे कटाना पिंड आउंदा है। कटाने पिंड बाहर जाके गुरु जी ने एक प्रेमी नूं बुलाया, जिहड़ा महाराज जी का श्रद्धालु सी, रसालदार कहते। उन्होंने जमाने के जैलदार जिन्हें होंगे नंबरदारा मंगू है, वो कोई रसालदार सी, गुरु जी का सेवादार सी, गुरस्ती सिंह सी, सारा परिवार गुरसिख सी। गुरु जी ने कहा भाई सिंह भुखे ने, लिया कोई जल पानी सुकाउण वास्ते। उस वक्त ही उन्हें जवाब देता महाराज मगर तो फौजा आ रही नहीं, मैं हूं तो मेरे घर कुछ भी नहीं है, इस वक्त तैयार नहीं कुछ सुकाउण वास्ते। उसका छोटा भरा सुनता सी, वो अलग सी, गरीब सी, ये बहुत मालो माल सी, वो भी गुरु का सिक्खी सी। उन्हें सुन लिया गुरु जी ने, तो गुरु जी अपने मूह मंग रहे ने, इन भाग जवाब दिंदा है। उस वक्त ही दौड़ के गया, जाके पुजे दाने घाट भुनाई होंगी अगे लोगों की, पंसेरी दो दो पंसेरियां जौ कणक सोले भुना के उन्होंने घाट कहने होंगे। घाट रखी हुई सी, एकदम तौड़े च चक्की पल्ले च पाई, गुरु महाराज के चरणों च पहुंच गया, दुध की लेके अपनी काढ़नी सुकाया। सतगुरु महाराज जी ने वर दे दिता उसने। गुरु जी कहने लगे तबादला हो गया, गुरुमुखों तबादला हो गया। ओदी सारी घर की जितनी भी जायदाद, जितनी भी ओदी अच्छाई सी, सारी दिनों के उस प्रेमी को पहुंच गई। वो उस वक्त ही जिन्हें जवाब दिता कि ढिला हो गया। सतगुरु महाराज जी इतों चले, रेणु साहब रामपुर के नाल ही है, पिंड के कोल ही। हुण कोल ही चलिया गया, अगे तो फर्क सी। जिथे संत महाराज अतर सिंह जी महाराज रेणु साहब वाले, जिहड़े बाबे करम सिंह जी महाराज तो वरस आए, इत्थे आके इस स्थान की सेवा की। आप जी ने इत्थे लंगर चलाए, उत्ते मरदान की गद्दी इत्थे प्रगट की। इत्थे ही संत महाराज जी छोटे दुन्ने, राजा साहब वाले बड़े और छोटे दुन्ने, इत्थे ही सेवा ये सारी दात प्राप्त की। इत्थे पंगर खा लिया, रात कट्टी, सुबह दातन की रेणु की दातन लिया, सिंघा ने रेणु की दातन की। सतगुरु महाराज ने दातन गढ़ दी उत्थे। रेणु बहुत बड़ा बन गया सी। बड़ा रेणु तो मैं देखा नहीं, काफी लक जिन्ना मुच्चर, काफी मोटा, इन्होंने थामलिया तो ज्यादा मोटा मैं दर्शन करे सीगे। वो कमरे च था मंजी साहब है, जिथे दरबार की मंजी साहब अलग है, वो दूसरी है जिन्हें उधर खुंजे हो गए अपने एक पासे, वो अड्डा कमरा। उथे इत्थे महाराज जी अगे चले, उमनी पलंग ते चले जा रहे हैं। गनी खां, नबी खां ते भाई दयासुर चक्की जा रहे हैं। अगे कनेश पिंड आ जाता है, कनेश की गोखे की छपड़ी है इस रास्ते ते। अगे कच्चा से सड़क बन गई कनेश में, जाके जीटी रोड से चढ़ जाती है कनेश बीजदी होके इतों रामपुर कटाने साहब तो। उथे नंबरदार सी एक महाराज जी का श्रद्धालु गुरसिख सी। नंबरदार ने गुरु जी ने बुलाया, भाई लिया इन्होंने सिंघा तो हुण पंग मोड़ दिए, गनी खा नवी खा होना बहुत दूर तो चक्की आ रहे हैं, तेरे को घोड़ी है, जल घोड़ी लेके आ, घोड़ी ते सवारी कर लांगे। उस वक्त ही बेनती की, मारे घोड़ी तो बीमार है, तुम जो करी नहीं कि माया पै गई, देने वाले दाते में भुल गया। साथ संगत जी मन मुखा ने विसार दिता, दात प्यारी जान के, मन मुखा ने विसार दिता, दात प्यारी जान के
गुरसिक्खी धारण करके गुरु जी तो दातां प्राप्त की। अज घोड़ी प्यारी लगन लग गई, गुरु जी ने टुट गया, दाते ने जवाब दे दिता। गुरु जी ने अगे चाले पा दिते। उन्हें कहा कि घोड़ी बीमार हो गई। सतगुरु महाराज जी उतो सोमरसर गुरुद्वारा है, टिब्बा पिंड है सालूवाल दे कोले, उत्थे पहुंच जाने घोड़ी मर गई। मगर पूछता महाराज जी घोड़ी मर गई है, कृपा करो होर ना नुकसान हो, मेरे तो गलती हो गई। गुरु जी कहेंगे तू ही कहना थी बीमार है, बीमार हो तो राजी थोड़ा होंगे, मर जाता होंगे। तो उन्होंने मुड़ाया उतो सतगुरु महाराज जी फलाई साहब गुरुद्वारा है जी अपना मलेरकोटे वालों आईए लुधियाने नहर आती है जी, एक तो लुधियाने के विच दी लंघदी है, एक रायपुर कोल दी लंघदी है, कैंट दे पुल कोल दी। वहां रायपुर की जूह च गुरु महाराज जी जा बैठे। हुण तो गुरुद्वारा साहब दीना पुल तो जिद्दों नहर जाती है सिवदी वाल मील कते है वध नहीं, तो उत्थे जाके रायपुर के लोगों को गुरु जी ने स्नेहा दिता। गुरसिख सिख रायपुर बहुत बड़ा पिंड है, तो उतो 1.5 मील 2 मील बाट गुरु जी ने बंदा भेजा, सिंह भेजा। सत से बैठे तो लोग बहुत गल्लां यही कर रहे थे भी देखो की कुछ हो रहा है, सरंद आ कुछ हो गया, सब गल्लां करते ने। सिख ने जाके कहा भी गुरु 10वें पातशाह महाराज जी सोडी जूह च आ गए, सोडी पंचायत में बुलाया है। सारिया ने कन्ना ते हथ धर लिया, कहने नाल दी नाल फिक्के वसन कर दिते। कहने एडी दूरों आनंदपुर साहब तो आ गए, कहने इत्थे उन्होंने पैर मैले हुंदे ने, आ वसन कहा उन्होंने गां उड़ी आ जांदे साडे कोले। एक सिंह ने चौथिया उस वक्त बड़ा दुख मन्निया भी तुसीं इह जिहे वसन क्यों कीते ने,
आपदे घर गया, दुध लिया, बूरा लिया, उसने जो कुछ सकल वाला सतगुरु महाराज के चरणों च पहुंचता है। जब गुरसिख ने जा दसा महाराज इस तरह पंचायत का बोली है। गुरु जी कहने लगे किसी ने सुना तो होगा, कहने किसी उठा, कहने तुम बहुत बुरा वचन कहा, गलती की है गुरु जी ने। उन्हें कहा मैं आना। वो आगा लेके दुध की बाल्टी ले आया, सकल बात लिया, कुछ बूरा लिया, कुछ घ्यो लिया, जैसी सतगुरु महाराज जी ने कहा तुम भी ने रायपुर दई बरेनिया? कहने हाँ महाराज जी मैं रायपुर दई हाँ। आप जी ने पहली बार दर्शन किए ने। सतगुरु महाराज जी कहने लगे जिन्होंने कहा कि पैर मैले होंगे उन्होंने पैर मैले नहीं, मिट्टी च रल जाएंगे सारे। तेरा ही रायपुर बसेगा, पटियाणी खेती वजदी सी, वो पटियाणी खेती ओदा महला गुरसिख का पटियाणी खेती रहती थी, बड़ी बहुत दूर तक वो रायपुर उसे ही रायपुर सारा होर बस गया। साथ जी पटियाणी खेती कहने एक बहुत बड़ा महला है वो, मैं वो देखा अच्छी तरह पिंड। मैं उत्थे संगतां कोल पढ़िया सी, गुरु महाराज दे पाठी उत्थे होए सीगे। उत्थे गरीबदासियों का डेरा सी, वो बजुर्गों ने उत्थे भेज दिते भी उत्थे पढ़ लो जाके। मैं उत्थे डाली वाले बाबा के नाल चले जाना, सारे का वाकफ हो गया सी। फिर भी जाते बड़ा डेरा सी, 5 गरांजी उन्होंने कई डेरे से और जमीन भी सी। बड़े विद्वान महापुरुष सीगे। वो पटियाणी खेती उदों सुनते होंगे उतों लोगों तो भी आ पटियाणी खेती महाराज जी के सेवादार दी है, बाकी सारे उजड़ गए से, सारे खत्म हो गए से। इतों गुरु जी ने पंग सकाया, आलमगीर आ गया, नाल ही आलमगीर लुधियाने वाल उच्चे थे। कोई सतगुरु महाराज की जी युद्ध नीति सी इसमें वर्ल्ड बन गई है। हुण रब की युद्ध नीति में भला कौन समझ सकता है? गुरु महाराज की युद्ध नीति सी ना भी लड़ाई का जो ढंग से गुरु जी का एक कमाल का ही सीगा। ये विचित्र नाटक गुरु जी ने लिखा है। विचित्र नाटक का मतलब यह है भी इधरों भुलेखा एक दूजे पासे की दुश्मन लेना, इधरों भुलेखा एक दूजे पासे लेना, इस तरह का मौके मुताबिक। हूँ सतगुरु महाराज जी जिस वक्त तो रोपड़ लंघे ने तो विचित्र नाटक मैनू चलते हैं। इतों दूजे पासे लड़ाई करते चले गए 4-5 मील सज्जे पासे में, उतों फिर दूजे पासे मुड़ के खब्बे में आ गए। इस तरह सतगुरु महाराज उतों तो चले आ रहे हैं। इतों इधर 2-2.5 मील 2 मील बाद आलमगीर में मुड़ गए लुधियाने वाल। उच्चा थे है जिथे बड़ा सारा हाल आप दर्शन मिल जाने नाल ही है। उत्थे पता लग गया नगाइए नगाइया से उत्थे का गुरु महाराज का सिख एक नगाइया सिंह, उन्होंने पता लगा भी महाराज जी तो पंग ते आ रहे हैं। गुरु जी के चरणों पहुंचे, कुछ कौन लैके बेनती की महाराज सेवा बख्शो। गुरु जी कहने भाई उन्होंने मोड़ने घोड़ी लिया तू आपदी, उन्हें घोड़ी पेश कर दी। सतगुरु महाराज जी ने वर दे दिता, कहने लगे तेरे नानके भी तरनगे, तेरी कई कुड़ियां तरनगियां, तू अपने नानकी चले जा। मूलवाल पिंड है जो बरनाल में जाइए स्टेशन है मूलवाल का, उत्थे नौवीं पातशाह महाराज जी गए थे। 10वें पातशाह महाराज एक रात वास्ते के प्रेम से इन दर्शन देने वास्ते रह कोटों गए थे। अस 14 पूर्ण गए नराते रात गुरु जी उत्थे कहने उत्थे तेन दर्शन देवांगे, तू उत्थे चले जा, मगर फौजा आउंदियां नेगियां। इतिहास के भाई संतोख सिंह जी भाई नगाइया सिंह की खातर ये लिखते हैं, आप तरिया ते नाम के तार से गुराने प्यारे वाने, आप तरिया ते नाम के तार से गुराने प्यारे
भाई गनी खान तो नवी खान गुरु जी ने हुक्मनामे दिते भी संगतां सब सोडा सत्कार करया करनियां लिख के हुक्मनामे दिते। उन्होंने उत्थे घरे पे ने दर्शन किए ने। वड्डी सारी मसीत मंगो उन्होंने घर मासीवाड़े गुरु जी ने उन्होंने कंगा बख्शिया, एक चक्कर बख्शिया। गुरु जी ने उन्होंने थापड़े दे के मोड़ दिता। आप उत्थे घोड़े ते चले गए। सतगुरु महाराज हेरी पहुंच जाते ने। हेरा नहीं अगे जाके मुल्लांपुर के इलाके सुधार के इलाके को हेरी हेरी कृपाल दास सीगा महंत जिहड़ा भंगाणी के युद्ध विच जिहदा सारे ही चेले दौड़ गए थे। उहदे सारे चेले दौड़ गए थे। भंगाणी पौंडे साहब गुरु जी कोले रहिंदे सी। सारे महंत इन्हां दा आगू इन्हां दा सारियां दा स्वामी कृपाल दास उदासी कृपाल दास उदासी संप्रदाय दे तो सारी रात में दौड़ के भी सुबह तो जंग हो जाना। कला कृपाल दास रह गया। कहने लगा महाराज मेरे ते कृपा करो। अपना जो बड़ा सारा सोटा हाथ च रखता हुंदा सी। कृपाल दास भंग पींदा सी, भंग घोटदा सी। उहदे नाल सोटा जिन्होंने कहते सुनहरा सोटा वो लैके गुरु महाराज के चरणों में पहुंचता। जंग पूरा मगया वै। कृपाल दास कहने लगा महाराज हुक्म करो। गुरु जी कहने लगे लड़ाई करने जान ले। महाराज कहने जब तुम कृपा करोगे आपे मैनू आउगी। सतगुरु महाराज जी कहने चंगा एक घोड़ा लै इथों फिर सिंह तो जा चढ़ तेरी फतेह होगी। जाके जिहड़ा उन्होंने बड़ा मुसलमानों का जरनैल सीगा, सारे पहाड़ी सीगे, कुछ मुसलमान सीगे जिहड़े सारे दे सारे जिथे भंगाणी का युद्ध होया यह बिलासपुरी है। भीमचंद का लड़के की शादी सी। उन्हें लड़के के सहुरे ने गुरु जी ने भी बेनती की महाराज तुसी आओ
गुरु जी ने मामा कृपाल भेज दिते, कुछ फौज भेज दी, चंगे चंगे अच्छे अच्छे वस्त्र दे दिते भी लड़की नूं भी दे दो, लड़के नूं भी दे दो, अपना कहने नाल बैर नहीं, लड़की वाला तो सादा ही है। जब उन्होंने देखा भी उन्होंने कोल बहुत समान है, सारे पहाड़ी राजे इकट्ठे होकर कहन लगे खोलो, ये तो 10-20 सिंह ने, आप इन्होंने की जानते, खोलो इन्हों की हद करो। जब मामा कृपाल जी को पता लग्या तो उन्होंने नंद चंद नूं जिहड़ा फौज का जरनैल सी उहदे हुक्म दे दिता भी एकदम सारे तंबू बन्नो, 5-4 सिंघां नूं दे के घोड़ियां ते वापस करो, आप इन्हां नाल टक्कर लईए। उस वक्त ही एक समान पा दिता, सारा समान उन्होंने चंगा लुटिया, चंगे चाटे सकाए, फिर सारे इकट्ठे होकर भंगाणी के युद्ध में तैयार होकर आए भी गुरु जी को तो फौज थोड़ी हुई है, सारे इकट्ठे होकर सारे पहाड़ी बच्चे हयात खां मर गए। फिर हयात खां के सिर च मारिया इसने, नेड़े लग के घोड़े तो मत्थे के उपर जोर दी मारिया आपका घोटना, वह खरबूजे में सिर फुट गया। सतगुरु महाराज खुश होकर बड़ा लिखा, कहने कृपाल को कहने क्रोध चढ़िया कृपाल नूं, कहने हयात शाह ने सिर भन दिता जिवें तुम्बा भन्नी दा। गुरु जी ने अपनी बाणी च लिखा 10वें पातशाह ने, वो कृपाल दास। अज गुरु जी ने उत्थे पहुंचे देख के कंबन लग गया, डर गया। महाराज जी ने जल पानी तो सकाया, कहने लगे मेरे डेरे चो डेरा सी ओहदा उत्ते, मेरे डेरे चो बाहरों जो मगर फौजां आ रही हैं, मैनू मार देणगे, कतल कर देणगे। गुरु जी कहने लगे कृपाल दास हुण तू बड़ा गीदी बन गया, उदों एडा वड्डा सूरमा सी। कहने लगे महाराज समय सी हुण नहीं, हुण कृपा करो मेरे डेरे चो। गुरु जी कहने लगे फिर कहना तेनों छड्डणगे। उत्थों सतगुरु महाराज जी फिर बस्सियों गल नहीं जाते ने, रस्ते दे विच राय कला, उहदा राज जगरामा तक ती मुसलमान सी, रायकोट का राजा कला, राय कला कहते वो मिल गया, वो चरणों ते डिगया महाराज जी ने, कहने लगे महाराज जी मेरे ते कृपा करो, मेरे घर चलो। सतगुरु महाराज जी रायकोट के नाल टाली साहब गुरुद्वारा उठता बाईपास से आ गया, पहला मील बाहर सी, उत्थे सतगुरु महाराज जी जंगल सीगा, उत्थे राय कल्ले दे कोले फिर उन्होंने तो पंग मंगा लिया, गुरु जी की सेवा च हाजिर रहा, तंबू ला दिता। सतगुरु महाराज जी उत्थे पहुंचे, उत्थे पहुंचे तो एक माही महीने चारदा, गुरु जी ने कहा लिया प्रेमीए दुध लिया चौके सकलिए। वो कहने लगे महाराज होर तो सारिया दुधों तो सुक्कियां गईयां ने, एक औसर झोटी वाले इशारा कर दिता उन्हें, माही ने। कहने लगे आ दुध दिंदी है महाराज, ਇਹਦਾ दुध पी लो। गुरु जी कहते बर्तन लिया प्रेमी, जब बर्तन लेंदा उन्हें गंगा सागर दे दिता जिहदी सारी सराख गलियां थले, गंगा सागर दे विच गलियां गलियां सारे थले वो दे दिता। गुरु जी ने कहा संगत चोनों थापी दे के भाई, उस झोटी चोई उत्थे गुरु जी ने संगत नूं दुध सकाया। वो लोटे दे विच जद धारा बजन लग गई उदों गलियां बंद, वो दर्शन कराउंदे रहे ने उत्थे। अज जद पाकिस्तान बनिया ना उदों फिर लै गए लोटा, पहला उत्थे दर्शन करने कराउंदे रहे नेंगे। वो थां ते टाली साहब गुरुद्वारा बहुत बड़ा, इत्थों सतगुरु महाराज जी ने फिर सरहंद नूं उस माही नूं भेजिया भी जो सरहंद तो पता लेके आ। जानते तो गुरु जी सब कुछ सीगे, पर वो तो एक कहानी इतिहास बनाना थी साडे वास्ते। आयो जगत तमाशा देखो, आयो जगत तमाशा, आयो जगत तमाशा देखो, आयो जगत तमाशा। आयो
क्यों नहीं चलता, कभी तेज कदे कभी घबरा कुछ। इस तरह गुरु जी ने माई नूं कहा भी जाओ सरहंद जाओ, तुसी उत्थे हाल चाल लैके दसो भी की है, उत्थे किवें हुई है शहजादे नाल माता जी नाल। जल्दी आ जाओ, अज ही आ जाओ। माई ने अर्ज की, महाराज सरहंद तो बहुत दूर है इतों, अज मैं किवें आ जाऊंगा, पता सारा लेवांगा महाराज जी, कुछ समय लगेगा कि मैं भी लुक लुक के उत्थों का बड़ा जालम वजीदा जी, मैं खबर लवांगा फड़ के मार देंगे। गुरु जी कहने लगे तू तैयार हो, अकाल पुरख के हुक्म तू जल्दी आ जाएगा। नमस्कार करके टांगा मोढे तरिया और माल चारन वाला चल पैंदा, सिंहां दे विच ही पहुंचिया। उत्थे सुनसान होई पई है दुनिया, चुपचाप थर थर कंदी है दुनिया। हिंदू लोग तो अंदर लुके बैठे ने, सब सारा पता लिया भी गंगू ने फड़ा दिते सीगे। माता जी शरीर छड्ड गए, शहजादियां नूं नीहां दे विच चिन दिता। तीसरे दिन सिखां ने छड़ा दिते सीगे, मलेरकोटले वाले नवाब ने, पठान ने भी जमदियां सूलां ने। जिहड़े मूँह तिखे यह कहंदा हैगा ये गलत गल है भी आप गुरु जी नाल मत्था लाया, आप उन्होंने लाओ, बच्चे तो की लेने, बच्चे जे अपने हजूर इन्हों छड्डो, इन्हों के नाल ना पाने दुख ना दो कोई। नवाब ने वजीद खान ने कहा छड्ड दो इन्होंने बच्चों। सुचानंद कहने लगे जे छड्ड दिते फिर किन्ने हो जाएंगे, तीन रल जाएंगे, कल्ले ही नहीं काबू आउंदा है। ओहदे पुत्र ने जमदे सूआं दे मूँह तिखे हुंदे ने, फिर पछताओगे, इन्हों छड्डो ना। ये सारा उन्हें सुन लिया, वो कहे तो फिर नीहां चिन दिते। उस तो बाद कोई लाशा न चुके सेवा न करे, डरदा। जो कोई दलील करता है तो डर जाता है। टोडर मल नहीं डरिया, पता लिया उसने भी टोडर मल सेठ है कि सरहंद च रहिंदा। उन्हें वजीद खान को कहा भी मैं संस्कार करना माता जी का, भी बाबा बाबे का भी दसो असीं कित्थे संस्कार करिए, कि कोई जगह नहीं इन्हों की खातर। मुल लै सकते मोहरा चिर के, उन्होंने मोहरा चिर के थां मुल ले लिया। उत्थे माता जी का ते शहजादियां का संस्कार कर दिता। सारी कहानी सुन के एकदम वापस आउंदा है। राय कल्ला कोले खड़ा है गुरु जी दे। गुरु जी कहने लगे राय कल्ले देख तो माही आउंदा किते कि नहीं। कहने महाराज जी तो पंचार कोई गया होगा, एडी जल्दी किमें आ जाएगा। गुरु जी कहेंगे नहीं, आपके सेवादार में चढ़ा रखते, जलते चढ़ के देख के तो होगा, चढ़ के देख मर जाओ भज्या आउंदा बाहुदा माही तो आउंदा। जब मेरे आया कहाँ मारन लग गया माही रो रो के। गुरु जी कहने लगे की गल है रोना क्यों, सारी कहानी दसी। सतगुरु महाराज तीर दे नाल पलंग ते बैठे, कोई जंगल सीगा, डब दा पुट्टा बूटा, उहदे जड़ा पट्टी जांदे ने।
नाले सुनी जाते ने सारी कहानी सरहंद की, नाल दी नाल उहनूं खोखला करी जाते, डब के बूटे नूं तीर दे नाल मार मार के तीर दे नाल उहदियां जड़ां पोलियां करी जाते ने, सुनी जाते ने। क्या सारी कहानी सुन ली? सतगुरु महाराज जी कहेंगे सारी गुरु मारी है, सरहंद गुरु मारी है। एक टोडर मल का महला बसेगा, सारी जुड़ जाएगी, इट इट खड़केगी यदि मेरा सिख उस वजीदे में बलदा मगर पा के घड़ीस के मारेगा, उन्हें जिन्हें सच्चा नंद में झूठा नंद में मारेगा, उन्हें जिन्हें शराप दे दिते। जब सतगुरु महाराज जी की जबान चो ये निकलिया, जाओ जालमो तुरको सोडी जड़ा पट दित्तियां, नाल दी नाल दबदा बूटा हेठा तो पा के गुरु जी ने तीर तां हटा के बाहर मारिया। जाओ जालमो सोडी जड़ा पट दित्तियां, इन्ना जुल्म किया, यह वसन कर दिता। राय कला चरणों ते डिग पिया, वो भी मुसलमान सी। महाराज जी मैं तो आप जी का सेवक है, तुसीं इन्हां जड़ा पट्टियां ने, मैं बिच्चे आ गया। गुरु जी कहेंगे नहीं तू सेवादार है, आ लै कटार। एक गुरु जी ने श्री साहब दे दी अपने गात्रे। गुरु जी ने उन्होंने एक दो होर शास्त्र दे दिते, कहने लगे लै जिन्ने चिर एदा अदब रखोगे सोडा लोग अदब रखेंगे। ये याद रखना। सतगुरु महाराज जी तो दिने कांगड़ चले जाते ने लखमीर ते समीर दे घरे। मुन्ने सरदार सीगे उस इलाके दे, ते गुरु जी दे श्रद्धालु सीगे, वो आके बेनती करते रहे ते गुरु जी उन्होंने नाल चले गए। राय कल्ले का सत्कार करते रहे लोग। काफी पुश्तां लंघ गई। जब थोड़े जे समा पाकिस्तान बनने तो थोड़े जे समय पहला, इस वक्त अपना 1800 सन का अदक आया, 56-58 आया, तो उही लड़का सत्कार करता है, धूफ दिंदा है। राय कल्ले की औलाद दे विचों गां राजे दी दे जिहड़ा उस राजगद्दी ते बैठा है, शहजादा नौजवान जिहड़े होर पठान सीगे आले दाले दे, वो आके कहण लगे असीं शिकार नूं जाना सी, तू साडे नाल नहीं जांदा, की करदा है? वो अंदर कमरे च है, बाहर आके शास्त्रों का सत्कार करता है, धूफ दिंदा है, सेवा करता है, साफ करता है। तां जिहड़ी श्री साहब महाराज ने दित्ती सी उसनूं चक के मत्थे नाल लाउंदा है। इन्नू पठाणा दा मुंडा कहने तैनूं अकल है कि नहीं? सारे का तो कतलाम कर दिता उस गुरु ने। तुसीं उन्होंने शास्त्रों में पूजी जाते हो, सुनू आउंदी है कि नहीं? गैरत नहीं आउंदी सुनू? ओह गुरु सिख असी मुसलमान कितना साडा कतलाम करके रख दिता। चल इस तलवार के आप कोई शिकार करेंगे, मिर्ग मारेंगे, चढ़ घोड़े ते। उस वक्त उन्होंने आखे लग के उही हाथ च फड़ ली तलवार जी गुरु जी ने दी सी, घोड़े ते चढ़ गया। जंगल का इलाका सी, चले गए। मूहरे हरण निकलिया। जब हरण निकलिया तो जब मारन लगे सज्जे पासों मारनी तो दूसरी बखी बलू होंगी है, पिछे मत करके उन्हें सीधी मार दी। वो मुड़ के आके हरण तक गाह लंघिया, मूर दी आके अपनी गर्दन ते लगी, उत्ते डिग के मर गया। उदों तो उन्होंने फिर सारे ने उन्होंने बेअदबी बाबा साहब सिंह ने पहले उन्होंने महल ढाहे जाके होती मरदान की गद्दी के बड़े महापुरुष 10वें पातशाह तो तीजे था, भाई दया सिंह तो तीजे था, उन्होंने साहब वाले बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक देव महाराज जी की लाद 111वें था श्री चंद। उन्होंने नाल मलेरकोटे वाले राजे ने ठीक किया, नाल इन्होंने उदों तो उन्होंने अदब हुण हट गया। साध संगत जी हम तो महाराज जी दिने कंगड़ अपने सिखा को पहुंच जाए, जेडे करवान होने वाले सिख डरते नहीं थे किसी तो गुलाबे मुताबे वो डरे नहीं दिने पाई। वो तो कहते साडे सिर कल जाए, साडा सिर है, शीश है, सब कुछ गुरु ने सानू दिता है। असीं जब गुरु दे बन गए असीं उदों ही सारा कुछ गुरु ने भेंट कर दिता है। जब भी उन्होंने वजीदा चिट्ठी भेजदा उन्होंने भी गुरु जी ने तुसीं या तां तोड़ दो उथों, नहीं मेरे पेश कर दो। तो वो कहते साडा सिदक हिलण वाला नहीं है, तू अपनी फौजों लेके आ जा। बेशक वो इस तरह के बंदे सीगे दोनों भरा। सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे।
बहुत बड़ा तीर्थ है जिते गुरु 6वें पातशाह भी गए हैं, 10वें पातशाह भी मारे गए ने, गुरु नानक देव महाराज जी गए ने, परथरी की गुफा भी है उत्थे। इत्थे नाल ही दिल्ली कांगड़ दे निहालेवाल कोले इधरले पासे नूं है, बहुत बड़ा स्थान है। उत्थे इन्ने गुरुद्वारे ने कोल ही नहीं सी लंघिया कोल दी दर्शन करके, तां उत्थे साल भर बाद उत्थे बहुत बड़ा जोड़ मेला हुंदा है। उत्थे सतगुरु महाराज जी ने जब चरण पाए तो लोग कहेंगे इतने पंज पीर रहने ने, पंज पीरियों का पिंड है। गुरु जी कहेंगे नहीं, इतने साढ़े पंज पीरिये रहेंगे, वो पंज पीरिये नहीं इतने रहेंगे, लाला वाले के पंज पीर नहीं रहेंगे, इतने गुरु नानक के पंज पीर रहेंगे। उत्थे बड़ी गुरसिक्खी है, उत्ते बड़े हर साधु बने रहते हैं कोई ना कोई पिंड के विचों। फिर अगे दिने कांगड़ चले जाते हैं लखमीर समीर कोले, उत्थे सतगुरु महाराज जी उन्होंने चबारे च रहे। उत्थे गुरु जी ने भाई दयाल सिंह ते धर्म सिंह जी नूं जिहड़ा फिट लानतां दा एक बंब बना के गुरु जी ने भेजा, जिसको मिसाइलां भेजते हैं अजकल, बंब बना के जिन्होंने जफरनामा कहने नहीं जाती, उहदा अर्थ ने फतेहनामा, अर्थ तो उहदा फतेहनामा ने, जफरनामा उहदा नाम लिखा गुरु जी ने। भाई दयाल सिंह नूं भाई दे के भाई धर्म सिंह नूं औरंगाबाद सीगा औरंगजेब उत्थे सी दखन च गया, तो उत्थे भी भेजा फिट लानतां दा। वो पढ़िया कई बारी पढ़िया, उहदे च लिखिया गुरु जी ने इतने उसनूं लानतां दित्तियां ने भी तेरे नूं फलानी कंजरी चंगी सी, वो कुछ बचन ते खड़ी रहिंदी सी, तेनों तो कंजरी चंगी थी, विश्वा चंगी सी, यही वचन लिखे ना गुरु जी ने, तू हिंदुस्तान का राजा होवे, वो तेनों खुदा ने तेरे ने एडी बादशाही बख्शी हो, तू इन्ना झूठा कुरान दे पाक जेड़े मजहब ते तू खड़ा है ओदी तो बेइज्जती कर दी, ओदी बेअदबी करा दी, तो कुरान की सौं खा के तेनों तो कंजरी चंगी सीगी। जो लानतां दित्तियां ने, ये लानतां सुन सुन के वो बंदल गया, बीमार हो गया। तो भाई दयाल सिंह ने जाके फतेह बुलाई, फतेह बुला के वो फड़ाया उसनूं, तो दूजे ने ਉਹਦੀ लड़की जैबनुसा सीगी, वो पढ़ के सुनाउण लगी फिटलान, तो वो बहुत महाराज की श्रद्धालु सी, वो बड़े रोब चा के सुनाई जाए तो बोंदली जाए, बोंदलिया बोंदलिया उठा नहीं, मर गया। फिर वो साध संगत जी
पर भाई दयाल सिंह ने पहले दस्या सी, कहने औरंगजेब तो बहुत बड़ा तपस्वी सी, पिछले जन्म में 40 साल तक तपस्या की सी, तू उल्टा पै गया। वो कहने लगा की सबूत है? औरंगजेब भाई दयाल सिंह ने की सबूत है? मैं तपस्या की सी, मैं एवं गुमारी। वो कहने फिर तेरे नाल का तपिया इतने कोल ही है, मैं तो कहा दिना। कहने कहो, कुत्ता बैठा थी, कहने आ बई। कुत्ते ने कहना गली फिरदा सी तो कुत्ता कहने हो रहा दस हम तुम इकट्ठे तपीए थे, कितने तप किया? वो कुत्ते ने बोल के सारा कुछ दसिया। औरंगजेब ने भी आप फलाने का तप किया इकट्ठे ने। आ तेरी हालत है, मेरी हालत है। हूँ तेन गां बाद नरक दे कीड़ा बनेगा। इन्हों फटलानता फिर उत्थे बीमार रहा तो काफी चिर बाद फिर मर गया सी। हाँ, इतने सतगुरु महाराज जी ने वजीद खान ने हुक्म ने अपनी बेनतियां भेजनी है भी तुम चले जाओ, नहीं मेरे पेश हो जाओ, मैं सुनू औरंगजेब को आ करा देंगा, आ करा देंगा। तो गुरु जी कहने लगे तुम अगे जो कुछ किया और कर लो। सतगुरु महाराज जी एक दिन खुश होकर समीर प्रसादा सिखा है, बड़ा भरा लखमीर का चवारे च। महाराज जी कहने समीर घोड़ा फेर ला, अज भाई तो दोनों भाई ने कट्ठे होकर अपने घोड़े से चढ़ो, खुश हो गए प्रसादा सक के अमृत वेले सकिया भी दिन सवेरे तक जिन्ना तुम थां बगलोगे सोनू राजे बना देंगे। घोड़े से चढ़ जाओ। अगे घोड़े से चढ़ के पिंड बनते होंगे लोग, घोड़ा फेर लो, मौका है, सारी दिहाड़ी है थोड़े को। उन्होंने काठियां कस लिया दोनों भाइयों ने गुरु जी का हुक्म मन के। उन्होंने मामा सीगा पंज पीरियां का, लाला वाले का सेवक। उन्होंने कारों मुख्तार से उत्थे रहना से उन्होंने को जब घोड़िया के काठियां कसिया बाहरों आ गया, कहने किधर में जाने हो? कहने कि गुरु जी ने कहा सानू भी जिथे घोड़ा फेर लोगे थोड़ा राज हो जाएगा। वो कहने कमले ना हो है मगर लग टोला जे ये सोनू राज देने वाले होंगे अपने किला को छड्ड के उन्होंने कटदा। उत्थे वो मूहरे बोल नहीं सके भी साडा मामा है। रुकवे जब सरदई लेके गया थोड़ा दिन रहना थे, 4 बजे दे शाम दे सरदई लेके गया समीर। गुरु जी कहेंगे फिर ले घोड़ा भाई। कहने मारे तो साडे मामे ने मना करता। गुरु जी कहने भी मौका है, दिन खड़ा है छोड़ा हूँ भी मौका जाओ। फिर नहीं अपने मामे की मनी, फिर उन्होंने काफी पिंड बगड़ ले सीगे। फिर एक दिन उन्होंने बेनती की समीर ने, इतने महाराज जी ने दोबारे फौज भर्ती की बराड़ा की, सिद्धूआं की बराड़ा की। बहुत उत्थे फौजा इकट्ठिया की, बहुत दूर दूर तक लोहा कुट्टन लाए, तीर कमान बनाने लाए, रफला बनाने लाए। इतने दोबारे हथियार गुरु जी ने सजाए सीगे, फौज तैयार की। फिर मुख लड़ता जंग तू जाके लड़िया सी। सतगुरु महाराज जी कहने लगे समीर को मंगला फिर तो बहुत सेवा की है। गुरु जी तो 4-5 महीने रहे से उन्होंने करे। कहने लगे महाराज मेरा जन्म मरण कट दो, मेरी यही बेनती है। कहने लगे मैं मुड़ के जन्म च ना आवा। अद्धा बोले जी मैं बहुत जन्म मनाया बेनती की मारे मेरा जन्म मरण कट दो। गुरु जी ने उनकी बेनती सुन के प्रसादा साकटे से मित्र मिच के फिर खोल के दस्से करे तेरा ताजे 101 जन्म बाकी है भाई। 101 जन्म तय लैके पिछले कर्म सारे भोग के फिर आज सेवा का फल मिलना तेनों, फिर तू मुक्त होगा, फिर गुरुपुरी साढ़े को आ जाएगा, फिर नहीं जमेगा मरेगा। कहने मेरे तो बहुत औखा है इन्हों का, कृपा करो। गुरु जी कहने लगे तेन दर्शन देता सी, चंगा तू कह रहा प्रसाद सकला। उन्हें प्रसाद सकला गुरु जी का सीत। रात में सोने लै सुपना आना शुरू हो गया समीर नूं, किते कुछ बन रहा है, पिक्चर चल पी ओदी सुपने के विच, किते घोगड़ बन रहा है, किते कुछ बन रहा है, किते हिल बन रहा है, किते सूर बन रहा है, किते गिद्दड़ बन रहा है, किते कुछ बन रहा है। अखीर का जन्म सी जिहड़ा 101 जन्म सी वो चूड़े में करदा हो गया।
समीर का काल पै गया, कितों दाना नहीं मिलता खाण नूं, बाल बच्चा बहुता है, बड़ा ने पीला तोड़ के खाण वास्ते अपने जवाकां नूं सब नूं नाल लै गया। आप पीले खाधी है सुपने से उसने अपने नूहां नूं, अपने पुत्तां नूं, पोतियां नूं सब नूं तोड़ तोड़ के खवाइयां तो अख खुल गई, उहदी जाग आ गई, कंबी जांदा भी आ की हो गया। उस तो बाद दातन चक्की, अमृत वेला होया, दातन लैके दातन कर लगे तो जाड़े च पीलों के बीज निकलते हैं, पीलों दी सिलड़ा निकलदियां ने, बेर खाधे होंदे ने, जाड़े च फसे गए, दातन दे नाल निकलते हैं। मैदान गया, उत्थे निशानियां निकलियां, और रह गया भी मैं सुपने च खाधियां ने, जड़ां चों किवें निकलदियां ने। महाराज के चरणों जाके बेनती की, महाराज सुपने मैनू यह गया, पता नहीं कितनी पिक्चर चली, अखीर का जन्म मेरा आ आया। गुरु जी कह लगे तेरे सुपने से भुगता दिता, मंग की मैं जन्म नाम मुड़ के, हुण तू मुक्त है, हुण या तू शरीर छड्डेगा, साडे कुछ सीधा गुरपुरी में आ मंग तू दुन्ने भरा। उत्थे दयालपुरे का एक मिस्त्री बैठा सी, दयालपुरे छेवें पातशाह महाराज जी का रथ खड़ा है, श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी का। वो इलाके के महाराज जी बहुत रहे ने, छेवें पातशाह। उत्थे भी दिलबाग ते गुलबाग का जंग लड़िया सीगा, उहदे पिछे उत्थे ही साई दास नाल भाई की डरोली तो आके गुरु महाराज भाई रूपे का तो भाई दयाल जी का प्यो पुत का ठंडा पानी पीता सी। फिर गुरु जी ने वर दिता, हम तुसीं गिल्ली लकड़ां वढ के लंगर च पा दिया करो, जली जाएंगे गिल्ली फिर चलते भाई की बागड़ियां नाभे को इतने गिल्लियां लकड़ां भी चलती, उन्होंने पिंड से सारे लंगर चल रहे थे। तो सतगुरु महाराज उत्थे भाई के दयालपुर का मिस्त्री बैठा था। जब समीर ने कहा, समीर हुण तू स्नान कर, असीं तैनूं विदा करके सचखंड में फिर तुरना। वो स्नान करके आ गया तो वो भाई का दयालपुर वाला मिस्त्री कहने मेरे ते भी कृपा करो, मैनूं भी तो नाली तोड़ दो गुरपुरी नूं, मैं आप जी का श्रद्धालु है। गुरु जी कहेंगे तू चल के अपने पिंड स्नान करके तैयार हो, असीं आउणे आ, तेरे नाल होर जाना, उत्थे किसी ने तोरांगे। समीर नूं विदा करके सतगुरु महाराज जी दिने कांगड़ तो अगे दयालपुरे वाल नूं चल पैंदे ने। सतसंग जी तां विचारां ने भी है अपने सारा ये प्रसंग आनंदपुर साहब तो कई दिन तो चल आया है। हुण सारे गुस्से तो गज बज के बोलो। देखो पहले इतिहास आप देख लो, किन्ना एक अरसा कुर्सियां के मालिकां ने धर्म रख के सानू धर्म की सिक्ख्या दे के आप जिम्मे घट सहे, भावें उन्होंने महसूस नहीं से होंगे, तो कहते मैं हूं परम पुरख को दसा, देखने आयो जगत तमाशा। कहने मैं तो प्रभु का दास, मैं तो कि जगत का तमाशा देखने आया। कितने कष्टों में तमाशा दसते ने। फिर सारे परिवार ने खेरू खेरू होकर किमें शहीदियां पाइया, होर गुरसिखा ने किमें बीबिया ने माइया ने किमें संस्कार किए, अद्धी अद्धी रातों जाके इन्ने जालम फौजा के बिच जाके संस्कार किए, सिंहां दे कले कले चक के रातों में। देखो धर्म की पालना तां होंदी है, तां अज सिख कौम इस तरह है। पर सिख कौम का जिहड़ा निशान है, शरीर का निशान है जिहड़ा, एक तो अपना आ निशान है ना गुरु जी का, एक गुरु जी ने सानू होर निशान दिता है, साडे शीश ते केस ने, सिर ते केस ने, ये साडा जमांदरू निशान है। इसमें मिटाई जाने पर फिर गुरु के सिक्का ले उन्होंने तो कुरबानियां किधरों गई दित्तियां गई, उन्होंने लोगों के मना चिड़े एवं सब कुछ मिटाई जाते लेंगे। कुछ सोच समझ के अपने इतिहास वाल देखो। साथ संगत जी सारे गुस्से तो गज बज के बोलो। बाबा जी की वर्षी शुरू हो गई है, अज पाठ भाई करतार सिंह तो ज्ञान सिंह वालों आरंभ हो गया है। उन्होंने सारे पाठ इस तरह चलने, ये भोग अनुसार संत महाराज जी राणे साहब वालों का उन्होंने निमित्त पहले जनवरी में उन्होंने शरीर का परित्याग किया। संत महाराज जी दोपहर प्रसादा पानी छक के 1 बजे फिर शरीर छड्या सीगा। उन्होंने राती तो पाठ आरंभ होगा, पहले भोग होगा, फिर बाबा जी के सारे पाठ चलते। सारी संगत आके सेवा करो, ला कट्टो, जिन्होंने नहीं आना लाइया वो हाजरियां लवाओ, ताकि अरदासां उन्होंने बाप गुरु जी अगे बेनतियां कीतियां जान भी सारियां दी लेखे लाओ जिन्होंने सेवा की है, भजन किया है। तन है तन है तन है गुरु नानक
नानक साहिब तनु
ਆਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਸਿਰਕੇ ਸਭ ਪੁਜਾਏ ਏਕ ਬਾਦ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਧਾਈ ਸਤਿ ਗੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਗੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਜਾਣੇ ਕਰਿਆ ਪਤੀ ਆਨੰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਕੈ ਨਾਨਕਾ ਕੁਲੀ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दसां पातशाहियों के पावन पवित्र स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन विभाग का ध्यान पर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरू के पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते 50 तख्ता सर्वत गुरुद्वारों के दर्शन विभाग का ध्यान पर खालसा साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरू जिन्होंने सिंह हुआ ने नाम जपिया वाले किसी के गुरुद्वारे में सुधारित शक्तियों ਉੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਨਵਾਈਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਧੇ ਕੇ ਸਾਸਾਂ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਮੇ ਸਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ चित आवन का सदका सब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा साहेब तहाँ तहाँ इच्छा रियायत ठीक फतेह बख्श चुका है पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल वाले बोलो जी श्री वाहिगुरू आप ये सिखा ना मानी मत उची मत पथ के राखे का राम रक्तदान रोहितदान तुषादान नमस्दान नामदान श्री मुक्त सत्संग जी के दर्शन स्नान तक खंडे होंगे अकाल धर्म का जयकार को सिद्धि सुधे के सांस स्वामी होना मेहरबान जीव आप जी चरण होना अरदास बेनती है आप जी की हजूरी में रात्रि के दिवस सजे हैं कीर्तन विज्ञान हुए हैं कीर्तन करते हैं अनेकों प्रकार दी हुई भुलों गलतियां वास्तु के वास्ते सब कीर्तन विज्ञान करना बल बख्शो गुरबाणी द्वारा विचारा हुई हैं इन्होंने विचारों का सिद्धांत साडे कलयुग जीवां के हिरदियां ते वसाओ आई संग की हाजरी तरफ भेटा जी दर प्रवान करो काम गुरु मुखार पहुंचा के अगले चरणों को कीर्ति बख्शो सही गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हें मिले आप जी का नाम अठे पैर चितावे भला वाहिगुरू जी की बातें धन श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे वाहिगुरू जी का खालसा